guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. Today we are going to be studying ICSE class 10 biology and a very important chapter from the board perspective, which is the nervous system. So without wasting any more time, let us quickly get started. The nervous system. Now before we begin with anything, let us first understand what does the nervous system do. Okay, now suppose I'm lifting this pen, right? This pen is on the floor and I'm picking it up. What am I doing? I'm actually picking it up. Now how am I getting the instruction of that? How am I getting the instruction that I have to pick up the pen? My brain sends it. And how does my brain send it? तो मतलब मेरा जो brain है ये मैसेज भेज रहा है कि विनीत हो जाए, ये पेन उठानी है. So all मेरे जो अंदर की जो nerves है, all the nerves, they are getting this sense, they are getting this instruction, and therefore I am picking up the pen, right? So this entire network of my brain, spinal cord and my nerves, total in overall it becomes my nervous system. This is something that you already must be knowing this, right? So now let us quickly understand. So ये जो हमारा पूरा chapter है ये हम यही करने वाले हैं. Functions about the brain, functions about the spinal cord and all the different types of veins and the capillaries and the tubes. So we're going to be studying about it in detail, extensively and intensively. So make sure that you hit the like, share and subscribe button, because I'm going to be making many more such videos on biology, physics, chemistry, history, civics and many more. So stay tuned and let's get started. Now we begin with the nervous system. Now the nervous system, we don't need to study about all of this. Now why do we need a question? You will get a question over here that why do we need the nervous system? Why do we need a nervous system? Because it helps us keep us informed about everything that is going on. It helps us to remember and to think. It controls all our voluntary muscular activities and it regulates the involuntary activities. What do you mean by that? It means that because of our brain, because of our sense organs, ये जो हमारे sense organs are, because of that we know what is going on around. That means you are seeing me. तुम लोग मुझे देख रहे हो कि मैं lecture पढ़ा रही हूँ, right? How are you getting that? तुम ऐसे alert कैसे बन रहे हो? Because of our nervous system. You are seeing with your eyes. The message is going into the brain. The brain is processing it, and that is how you are knowing कि अच्छा चलो मिस ये पढ़ा रही है. It helps us to remember and to think, and it controls and it harmonizes all our muscular voluntary activities. Now voluntary activities means that everything that is in our power. तो suppose मैं अगर ये पेन मेरी उठा रही हूँ, ठीक है, आई एम पिकिंग अप द पेन, तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटी. दैट मीन्स इट्स इन माई कंट्रोल. इनवॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज मीन्स सपोज माई हार्ट इज बीटिंग. अभी कैन आई कंट्रोल माई हार्ट बीट? Anything, all the activities that you can't control are known as your involuntary activities. For example, beating of the heart and without thinking, beating of the heart or blood circulation, all of them are our involuntary activities. Now first we need to understand that the basic unit of the nervous system is a neuron. So we are going to be studying about the neuron. Now हमारे body में कैसे cells होता है, right? We have blood in our cells. So this cell, ये जो हमारे जो cells होते हैं, they are the basic unit of our system. Now in our nervous system, जो हमारा पूरा nervous system है, उसमें हमारा basic unit है neuron. So our nervous system, it is made up of multiple neurons. So जो पूरा neuron का जो network बनता है, that makes up the nervous system. So a nervous system, first of all, a nervous system contains of a brain, spinal cord and sense receptors and a lot of nerves. So 4 points over here. First of all, our brain, जहाँ से मैसेज तुम अंडरस्टैंड करोगे. सपोज तुम्हें अपनी पेन पिकअप करनी है तो ब्रेन से मैसेज आएगा, वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक. पॉइंट नंबर 2. देन देयर विल बी सेंस रिसेप्टर्स. पॉइंट नंबर 3 एंड अ होल लॉट ऑफ नर्व्स. तो ये जो नर्व्स है, ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज है वो नर्व के थ्रू जाएगा. द मैसेज विल गो थ्रू द नर्व्स एंड दैट इज हाउ आवर फिंगर टिप्स और आवर सेंस रिसेप्टर्स और आवर sensory organs will understand it and do the action. For example, our eyes, for example, our ears, all of them are our sense receptors. तो ये पूरा जो नेटवर्क होता है ये हमारा बन गया क्या? Nervous system. Let us study first about the neurons, because all of these, ये जो हमारे पूरे जो nerve cells होते हैं, हम लोग we'll be studying it forward, we'll be studying it ahead, the nerve cells. So ये जो हमारे पूरे nerve cells होते हैं, our entire nerve cells are made up of the basic unit. So what is a neuron? A neuron is the basic structure or the basic unit of the nervous system. Now a neuron is made up of 3 parts. First of all, the body, the dendrites and the axon. So let us study first of all. ये है हमारा जो structure
structure. This is our entire structure. तुम्हें ये structure बहुत ही VVIMP, this structure you have to study it very nicely. This is our entire neuron. Now ये जो पूरा जो part है, ये जो body का जो part है, this entire body part, this is known as our, this is a very important part, this is known as our cyton. Cyton is like a body. ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे साइटॉन. नाउ दिस साइटॉन, उसके अंदर एक सेल होता है, इट्स लाइक द न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस, दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस. इसके अंदर तुम्हें इसे डॉट बनाओगे और ये जो छोटे छोटे पार्ट तुम्हें दिख रहे हैं, लेट मी जूम इट इन. ये जो तुम्हें ये जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, दे आर नथिंग बट द ग्रैन्यूल्स. ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड. तो तुम अगर तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे. इफ यू गेट अ क्वेश्चन दैट ड्रॉ न्यूरॉन, तो तुम ऐसे बनाओगे, बीच में एक न्यूक्लियस बनाओगे एंड यू विल मेक स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स. ये जो ग्रैन्यूल्स है, दे आर मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द एंड. तुम यहाँ पे देख पा रहे हो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रैन्यूल्स एट द एंड, बट जहाँ पे तुम लोग ऐसे नजदीक आओगे न्यूक्लियस के पास, तो वहाँ पे थोड़े कम ग्रैन्यूल्स हो जाएंगे. सो देयर आर मोर ग्रैन्यूल्स टुवर्ड्स द एंड एंड देयर आर कंपैरेटिवली लेस ग्रैन्यूल्स इन द मिडिल. तो ये तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट वेरी वेल. नेक्स्ट कम्स ये जो अभी हमारा साइटॉन है, मतलब ये जो हमारा बॉडी है, यहाँ पे इसके तुम्हें ये जो ऐसे यहाँ से ऐसे ना फाइबर्स निकलेंगे तुम्हें. ये जो फाइबर्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन. अभी एक फाइबर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग डेंड्रॉन. पर अगर बहुत सारे फाइबर्स होंगे, इफ देयर आर मेनी डेंड्रॉन्स कलेक्टिवली इज नोन एज डेंड्राइट्स. तो ये जो है ये उसका प्लूरल फॉर्म है और डेंड्रॉन जो है ये उसका सिंगुलर फॉर्म है. ठीक है, so these are the singular forms, dendron and dendrite. Now ये यहाँ पे निसल ग्रैन्यूल्स, इसको निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं. तुम लोग सिर्फ ग्रैन्यूल्स नहीं बोलोगे, निसल ग्रैन्यूल्स. तो हम लोग ने पढ़ लिया दैट देयर इज अ डेंड्रॉन, साइटॉन, न्यूक्लियस. ये हमारा बॉडी आ गया. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज उसका मेन बॉडी और द स्टेम. नाउ यहाँ पे ये जो उसका स्टेम है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन. हाउ विल यू ड्रॉ इट? यू विल जस्ट एक्सटेंड इट ओवर हियर. स्टार्ट में यहाँ पे जो है ये थोड़ा थिक होगा एंड देन इट विल बिकम अ लिटिल थिनर. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट माई एक्सॉन. दिस इज नोन एज माई बॉडी. ये उसका स्टेम है, सॉरी नॉट द बॉडी, दिस इज अ स्टेम. तो उसको तुम लोग बोलोगे एक्सॉन. नाउ ये जो एक्सॉन है हमारा, उसमें ना ऐसे थोड़े शीट्स होते हैं. शीट मीन्स अ कवर. दैट शीट, नाउ इफ यू कैन सी वेरी केयरफुली, दिस इज माई एंटायर एक्सॉन, राइट. तो उसका जो एक कवर है, ये पहला एक बाहर का कवर है. That cover is nothing but my neurolemma. That बाहर का cover is my neurolemma. फिर उसके अंदर एक शीट है, उसके अंदर एक और शीट है. So let me zoom it in. ठीक है, let me zoom it in. Now ये जो बाहर की मेरी शीट है, this ये जो मेरी, let me zoom it in. Right, yes. So यहाँ पे ये तुम लोग देख रहे हो, this entire thing. ये मेरी अंदर की शीट है एंड दिस इज नथिंग बट माई माइलिन शीट. ये जो अंदर का ये जो पार्ट है ना, दिस, ओके. लेट मी जूम इट आउट वंस अगेन, जस्ट अ सेकेंड. यस, सो ये जो मेरी अंदर की जो शीट है ये है मेरी माइलिन शीट, बट द कवरिंग इज नोन एज माई न्यूरोलेमा. दैट मीन्स ये जो मेरा एंटायर जो कवर है दैट इज कवर्ड बाय न्यूरोलेमा एंड द शीट इज कवर्ड बाय, सो सी ओवर हियर वेरी केयरफुली, लेट अस सी. ये जो मेरा अंदर का जो शीट है, ये जो अंदर का शीट है दैट इज माई माइलिन शीट. ये जो अंदर का मैंने ब्लू कलर किया है ये मेरा है माइलिन शीट. पर ये जो मेरा पूरा जो कवर है, व्हाट एवरीथिंग दैट आई एम कलरिंग विथ येलो, एवरीथिंग दैट आई एम कवरिंग विथ येलो इज माई न्यूरोलेमा. नाउ व्हाट इज अ न्यूरोलेमा? बेसिकली न्यूरोलेमा जो है ये मेरे पूरे एक्सॉन को कवर करता है. माई न्यूरोलेमा इज कवरिंग माई एंटायर एक्सॉन. सो दिस इज नथिंग बट माई न्यूरोलेमा.
बाहर का जो पार्ट है ये मेरा न्यूरोलेमा है, अंदर का जो पार्ट है वो मेरा माइलिन शीथ है। नाउ ये जो दोनों माइलिन शीथ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, रणवीर नहीं, नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। दिस नोड, this part is my node of Ranvier, and over here you can see there are some extra cells, so that's totally okay. But what is important is that it is surrounded by a white insulating sheet covering the cells. तो ये जो मेरे cells है यहाँ पे, ये जो बाहर का part है, that is nothing but my neurolemma, and my neurolemma is a shock prevent. ये जो है neurolemma, ये पूरा जो shock होता है ये shock को prevent करता है. It is the sheath is out there so that whenever you get a shock means not an electric shock, but whenever you get a jerk, ऐसे थोड़ा तुम लोग ऐसा थोड़ा हिल जाते हो, so that this axon is protected. इसके लिए बाहर का जो protective sheath होता है न्यूरोलेमा. This place is the node of Ranvier. The myelin sheath shows gap. तो ये जो अंदर का जो ये मेरा part है myelin sheath, it is in gaps. So मतलब how will I draw my entire axon? तो यहाँ पे मैं ऐसे draw करूँगी और ये ऐसे, ये मैं इसको कलर कर दूंगी. ये जो colored part होगा ये मेरा myelin sheath होगा, एंड जो ये बाहर का पार्ट होगा ये मेरा न्यूरोलेमा होगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोलेमा? इट इज अ वाइट इंसुलेटिंग शीथ एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एंटायर एक्सॉन. और ये जो मेरा एक्सॉन है ये एंड में नीचे जाके ऐसे ये जो मेरा एक्सॉन है ये नीचे जाके ऐसे, ये जो है ये एक्सॉन के एंडिंग्स बन जाएंगे, ठीक है. दीज आर माई एक्सॉन एंडिंग्स. नाउ व्हाट हैपेंस इन ऑल द न्यूरॉन्स आर दैट ये जो शीथ, ये जो न्यूरॉन एक्सॉन एंडिंग्स है, ठीक है, ये मेरा एक्सॉन का एंड है. तो दिस इज माई एंटायर न्यूरॉन स्ट्रक्चर. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? बहुत सिंपल है, ये मेरा पूरा एक्सॉन का स्ट्रक्चर है. नाउ ये जो मेरा एक्सॉन का स्ट्रक्चर है, इसका जो ये एक्सॉन एंडिंग्स है ये जो है ये कंटिन्यू होते हैं डेंड्राइट्स ऑफ अनदर एक्सॉन. सो एन axon end connects or joins to the dendrites of another axon. So that is how two neurons are connected. एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, उसकी एक लाइन बन रही है, और वो जो लाइन है, एक जो मेरा न्यूरॉन है उसका जो एक्सॉन का एंडिंग है वो, और दूसरे न्यूरॉन का ये जो डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट, ये दोनों कनेक्ट हो रही है. दैट इज हाउ इट इज हैविंग अ कंटिन्यूएशन, ठीक है. सो दिस इज माय एंटायर एक्सॉन स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. मैंने सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं समझाया. सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल्स आर क्लोजली. नाउ ये जो है इन दोनों के बीच में, ये मैंने बोला ये एक्सॉन की एंडिंग है और यहाँ से ये मेरे डेंड्रॉन बन रहे हैं, राइट. सो axon terminals are closely placed near the dendrites of one another and they are not connected. तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये दोनों है, दोनों आसपास, तो मतलब ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. तो ये मेरा एक सपोज एक्सॉन का एंड है, तो ये जो डेंड्राइट होगा, दिस इज अ डेंड्राइट एंड दिस इज एन एक्सॉन एंड. ये मेरा एक एक्सॉन का एंड है. तो ये जो मेरा एक्सॉन एंड और डेंड्राइट के बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज नथिंग बट माई सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ये जो है मेरा पूरा बन गया क्या? सिनेप्टिक क्लेफ्ट. सो इफ आई शो यू ऑल a synaptic, so basically the distance or basically the space between the axon ending of one neuron and the dendrite of another neuron, that place is called as my synaptic cleft. Okay, easy peasy lemon squeezy. Now this is a very important new terminology. Stimulus का क्या मतलब होता है? It is an agent which causes the change, which causes a change. So for example, अगर मैं कुछ थ्रो कर रही हूँ तो मैंने थ्रो किया, राइट. सो आई एम द स्टिम्युलस, मेरी वजह से कुछ चेंज आया. सो एन एजेंट मीन्स द वन हु इज अ डूअर ऑफ द एक्शन एंड और अ सडन चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल विच रिजल्ट्स इन द चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है. रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने बॉल तुम्हारी तरफ थ्रो किया, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा, राइट. सो द चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन द स्टिमुलस. तो तुम क्या होगे? एकदम मूव हो जाओगे, तुम ऐसे डक करोगे. सो दैट डकिंग इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स. द वे यू रिएक्ट to how a stimulus has acted is known as a response. It is a change. तो तुम obviously तुम्हारा एक्शन चेंज हो रहा है, राइट. मैं तुम्हें बॉल थ्रो कर रही हूँ, तुम वहाँ पे डक कर रहे हो, तो ये जो डकिंग होगा दैट इज नथिंग बट अ रिस्पॉन्स.
Now comes a impulse. Now when you are responding, तुमने पहले बॉल को देखा होगा, right? You saw a ball and then your brain sent a message to the body that you have to duck, you have to run away. That is known as an impulse. This is a wave of irritability or a wave of change. Suppose मैं इसे pinch भी कर रही हूँ, पिंच कर रही हूँ खुद को मैं, तो मुझे थोड़ा पेन होगा, राइट? सो दिस इरिटेबिलिटी दैट फॉर्म्स, है वो ऐसे अंदर जा रहा है, रिस्पॉन्स एंड दिस इरिटेबिलिटी, द डिस्टर्बेंस दैट इज देयर इन माई नर्व सेल्स व्हेन इट इज गोइंग, दैट इज नोन एज माई इम्पल्स. दैट हाउ इज माई नर्व सेल रिएक्टिंग टू द स्टिम्युलस. Receptor, the nerve cell on which receiving and the nerve cells which on receiving the stimulus sets up the wave of impulse towards the central nervous system. The nerve cells which on receiving the stimulus sets a wave of impulse towards the system. So now when I'm saying a receptor, the receptor will basically receive the impulse, राइट? तो मैं अभी यहाँ पे पिंच कर रही हूँ, तो ये जो पिंच है ये मेरा इम्पल्स होगा, राइट? देयर इज अ वेव गोइंग ऑन इन माय बॉडी. पर ये जो सेल्स है जो फील कर रहे हैं, द सेल्स दैट आर फीलिंग एंड दे आर सेंडिंग दैट इम्पल्स टू द ब्रेन, that are nothing but the receptors. So they are the nerve cell which is picking up the pinching and it is sending to the brain. So those nerve cells are my receptors. And what is an effector? An effector is nothing but a muscle or a gland which on receiving the impulse from the brain secrete some substance. So मतलब मैं इसे pinch कर रही हूँ, ठीक है, अपने आप को, तो मेरा एक ब्रेन है, मेरा जो ब्रेन है वो काम करने लगेगा कि चलो मैंने रिएक्ट करना है, I have to react. Now when that brain sends a response basically to my skin to start bleeding, right? Suppose यहाँ पे कट आया होगा तो मेरा ब्रेन एक रिस्पॉन्स भेजेगा and it will start bleeding. So that is my effector. Let alone, चलो एक कोई और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज ऐसे मैंने कोई सपोज इफ आई हैव टेकन अ मेडिसिन, मैंने कोई मेडिसिन लिया है, ठीक है. नाउ दैट मेडिसिन इट गोज इनटू माय सिस्टम. चलो वो एग्जाम्पल नहीं लेते, कोई अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. सपोज मुझे एक बॉल लगाओ, ठीक है, मैं मुझे जोर से मुंह पे ऐसे बॉल लगाओ, मैं ऐसे पूरा चकरा के नीचे गिर गई हूँ, ठीक है, आई फॉलन डाउन. नाउ व्हाट वुड हैपन इन यूजुअल केसेस? अगर मेरा जो ब्रेन है वो ऐसे फंक्शन नहीं करेगा जैसे वो अभी करता है, तो प्रोबेबली द बॉल का जो छोटा सा हिट है, because of that also I could have died. But what the brain does, brain क्या करता है, brain ऐसे stimulus भेजता है to the other glands, to the other hormones, to the other organs to secrete some substance so that वहाँ पे antibodies grow हो या फिर कोई antioxidants या फिर antigens grow हो या फिर वो born हो, so that they can reduce the pain that is there in my body. ठीक है, तो वो इंटरनल. सो दिस एंटायर प्रोसेस की जो मेरा जो ब्रेन है वो किसी और ग्लैंड को या फिर कोई और स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे भेज रहा है, दैट इज नोन एज नथिंग बट माई इफेक्टर. तो ये जो मेरा ग्लैंड होगा जो रिस्पॉन्ड करेगा, the gland which is responding to secretion of say enzyme or anything, that is known as my effector. So this is what is our entire chain of nervous system. This is a chain of activity. इसको हम लोग बोल सकते हैं chain of activity. Now, right, so now we need to study the entire axon functions. तो हमारा जो सेल बॉडी है, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा कि ये जो पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा, ये साइटिन होगा. This is nothing but the cytin or the perikaryon भी बोल सकते हैं. It has a nucleus which is surrounded by granular cytoplasms. It has cell organelles. Centrosome is absent. ये important है. There is no centrosome because the nerve cells have lost the ability to divide. मतलब ये जो मेरे nerve cells है, they cannot produce, they cannot have meiosis कुछ भी नहीं हो सकता है. They can't divide. So therefore the centrosome is missing. पर हमारा जो डेंड्राइट होगा, ये जो डेंड्राइट है, दिस इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्मिक. यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है. दे आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी. सो ये जो है ये एक्सटेंड हो रहा है. सो दे आर माई साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी. ये जो हमारा पूरा जो इम्पल्स होता है ना, ये जो पूरा इम्पल्स होता है ये इधर से ऐसे आता है, देन इट गोज टू द साइटोन. इट डज नॉट कम डायरेक्टली. ये जो है पूरा जो हमारा इम्पल्स है जो हम लोग ने अभी यहाँ पे पढ़ा, द इम्पल्स इज व्हाट, बेसिकली अ वेव ऑफ इरिटेबिलिटी. मैं पिंच कर रही हूँ तो मैं वो पिंचिंग का जो है, जो फीलिंग है, जो इम्पल्स है, वो कैसे जा रहा है, वो इट इज गोइंग थ्रू द साइटन. ये साइटन के थ्रू जा रहा है, सॉरी, इट इज गोइंग थ्रू द डेंड्राइट और द डेंड्रॉन. इट इज गोइंग थ्रू द डेंड्राइट. डेंड्राइट से ये साइटोन के पास जा रहा है, ठीक है. नाउ
नाउ द एंड पोर्शंस ऑफ द एक्सॉन, ये जो उसका एंड पोर्शन है एक्सॉन का, दे आर स्वोलन विच हैव न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो ये जो एंड पोर्शन होता है जो साइटोन का, दे आर लाइक अ बल्ब. तो ये एमिट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को. यू नीड टू मेक श्योर you remember this, that the end portions of the axons, they have a bulb like structure which release neurotransmitters, which release a chemical called neurotransmitter. तो ये ऐसे करके अपने जो impulse है वो उसको send करता है from one to another. ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, दिस सिनेप्टिक, नाउ आई विल टेल यू हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. नाउ सपोज मेरा एक वेव का इरिटेबिलिटी है वो पास हो रहा है. माय वेव इरिटेबिलिटी मतलब जो वेव है इम्पल्स का वो इधर से लेके उधर जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम माय दिस एंड टू माय दिस एंड. दिस इज माय डेंड्रॉन और ये है मेरा एक एक्सॉन एंडिंग, ठीक है. तो अभी क्या हो रहा है कि इट इज गोइंग, मतलब व्हाट हैपेंस इज इट गोज फ्रॉम एक्सॉन टू माय डेंड्रॉन. दैट मीन्स दैट ये जो मेरा एक्सॉन है, यहाँ पे ये जो एक्सॉन दिख रहा है, now this is my axon, ये मेरा axon है. so what happens is that when the impulse is going on, ठीक है, ये जो होता है ये ऐसे थोड़ा it bounces. और ये जो synaptic cleft है, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है यहाँ पे, पता है हमने पढ़ा द सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज नथिंग बट द स्पेस बिटवीन द डेंड्रॉन एंड द एक्सॉन. तो ये जो है ये थोड़ा ऐसे मूव होता है, तो ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वो इम्पल्स पकड़ लेता है एंड दैट सिनेप्टिक क्लेफ्ट passes the impulse to the dendron. तो ये ऐसे मूव हुआ, यहाँ पे उसको पास ऑन हुआ. दैट इज हाउ इट गोज अहेड, ऐसे ऐसे मूव करते जाता है एंड इट गोज टिल आवर brain. So that is how a movement of an impulse is from the axon of one neuron to the dendron of another neuron. ठीक है. Okay, so with this we complete the entire structure of a neuron. Very important. This is all you need to know when it comes to the neuron structure. In the next video, we will carry on with the next chapter. So make sure that you hit the like, share, and subscribe button if you want the continuation of this chapter. And let's have fun, enjoy, and don't forget to like, share, and subscribe, and share it with your friends. And I'm going to see you all really very soon. So this was our structure of a neuron. I'm ending the session now. Thank you so much. Ending it right now. Vriddhi Doshi, thank you so much.